کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو مارکیٹ جو ہے پہلے آپ کے اسٹاپ لاس کو ہنٹ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جس ڈائریکشن سے آپ نے ٹریڈ لیا مارکیٹ اسی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے؟ تو آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ بہت سے ریٹیلرز ہیں جو اس ٹریپ میں جو ہے ٹریپ ہو رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم ان ٹریپ سے کیسے جو ہے بچنا ہے اور کیسے ہم نے یہ لیکوڈیٹی سویپ اور لیکوڈیٹی گریپ کے بعد جو ہے ٹریڈ لینی ہے۔ ٹائم ضائع کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایس ایف سی لیکوڈیٹی گریپ لیکوڈیٹی سویپ کے حوالے سے اور اسٹاک ہولڈنگ ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لیکوڈیٹی گریپ کے بارے میں۔ تو جب مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہوتی ہے اور ہائی بناتے اوپر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا جو جب مارکیٹ اوپر میں جاتی نیچے سوئنگز بنانا شروع کرتی ہے تو اس ایریا کو ہم اپنا ریسنٹ بی او ایس مارک کر لیتے ہیں۔ ریسنٹ بی او ایس ریسنٹ بی او ایس اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ اسٹرانگ ہائر لو اور اس کو اسٹرانگ لیکوڈیٹی ایریا جو ہے مارک کرتے ہیں۔ اسٹرانگ لیکوڈیٹی ایریا اسٹرانگ لیکوڈیٹی ایریا اس کو ہم مارک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی مارکیٹ اس طریقے سے اوپر جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے سوئنگز لے کے نیچے آنا شروع ہوتی ہے تو اس کو ہم سوئنگز کے بارے میں ہم پہلے کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی پلے لسٹ میں جو ہے اس ویڈیو میں پلے لسٹ کا لنک ہے تو آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب مارکیٹ اس لیکوڈیٹی ایریا کے اوپر آ کے اس طریقے سے ایک انڈیوسمنٹ بناتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ نے جو ہے وہ لیکوڈیٹی گریب کر لی ہے۔ جیسے ہی مارکیٹ ایک انڈیوسمنٹ بناتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ نے جو وہ لیکوڈیٹی گریب کر لی ہے اور اب مارکیٹ جیسے یہاں پر ایک مومنٹم کینڈل دیتی ہے بائی کی یا پھر بائی کا کوئی بھی سیٹ اپ دیتی ہے تو ہم بائی کی انٹری پلان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یا پھر مارکیٹ اس طریقے سے نیچے آتے ہوئے اوپر جاتی ہے ایسے اور جیسے ہی اس سوئنگ کو بریک کرتی ہے تو چینج آف کریکٹر ہو جاتا ہے اور پھر ہم لوگ اس کو اپنی ڈیمانڈ مارک کرتے ہیں۔ جیسے اس ڈیمانڈ کے اندر مارکیٹ ہمیں کوئی چھوٹی سی ایک بھی مومنٹم کینڈل دے دے تو ہم بائی کی ٹریڈ لیتے ہیں۔ جو ہمارا فرسٹ ٹی پی ہوتا ہے وہ ویلڈ فرسٹ سوئنگ ہوتا ہے۔ تو آج یہ لیکوڈیٹی گریب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اگر آپ کو مزید اس کے حوالے سے معلومات ہیں تو لیکوڈیٹی گریب کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ لیکوڈیٹی سویپ ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں اس طریقے سے جا رہی ہوتی ہے اور ایسے اسی طریقے سے ہم اس کو بھی ریسنٹ ویوز مارک کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد یہ جو اسٹرانگ لیکوڈیٹی ایریا ہوتا ہے اور مارکیٹ جو ہے جیسے ہی سوئنگز دیتی ہوئی نیچے آتی ہے بالکل ویسی، لیکن اس دفعہ مارکیٹ جو ہے ایک کینڈل بناتی ہے اس طریقے سے اور اس کے نیچے ایک بہت بڑی وک ہوتی ہے اس طریقے سے۔ اس دفعہ مارکیٹ جو ہے یہ اسٹرانگ لیکوڈیٹی ایریا اس کے نیچے باڈی کو کلوز نہیں کرتی بلکہ ایک بڑی وک بنا دیتی ہے تو اس کو ہم لیکوڈیٹی سویپ
मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया के नीचे इसकी बॉडी क्लोजिंग दी और एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, इसको हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। और जैसे ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया के नीचे मार्केट सिर्फ जो है वीक को लगाए, बल्कि इस बॉडी को क्लोज ना करे, तो हम इसको लिक्विडिटी स्वीप मारते हैं, मार्क करते हैं। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप के बाद बाज औकात ट्रेड दे देती है, लेकिन वो बहुत छोटी ट्रेड देती है, लेकिन मार्केट ज्यादातर एस सेल को हंट करती है। तो आपने कोशिश करना है जो लिक्विडिटी ग्रैब जब हो जाए तब आपने ट्रेड लेनी है। लिक्विडिटी स्वीप पर आपने ट्रेड से बचना है। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझना है। तो डाउन ट्रेंड में भी आप लोगों ने इसी बात का ख्याल रखना है, जब मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही होती है तो आपने रिसेंट व्यूअर्स मार्क करना। जी, तो रिसेंट व्यूअर्स मार्क करने के बाद आप लोगों ने ये रिसेंट व्यूअर्स था, इसको आपने मार्क करना। इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये स्ट्रॉन्ग लोअर हाई जो है ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, इसको भी आप लोगों ने मार्क करना है इस तरीके से। जैसे ही मार्केट जो है वो ऐसे जाए स्विंग्स लेती है, जैसे ही इसको एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ जो है इंड्यूसमेंट बना दे, तो इसका मतलब है मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी पूरी तरीके से ग्रैब कर ली है। अब हम लोग जैसे ही यहाँ पर एक सेल की मोमेंटम कैंडल दिखेगी या फिर स्ट्रक्चर मार्केट शिफ्ट करेगी, तो हम सेल की ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने लिक्विडिटी अगर इस एरिया पर ऐसे मोमेंटम कैंडल नहीं आते, बल्कि मार्केट जो है वो एक इस तरीके से एक ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करते, बल्कि एक विक लगाती है, और आप लोगों ने इस विक को ऐसे मार्क करना है। इसके बाद मार्केट जो ट्रेड देती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हंट करती, कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं देती। लेकिन जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है तो मार्केट बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवमेंट मिलती है। तो आज के जो दो टॉपिक थे वो हमने पढ़ लिए, SFC SBC लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप। अब हम पढ़ लेते स्टॉक हेल्पिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। बाज औकात आपने देखा होगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रही होती है या फिर डाउन ट्रेंड में भी, तो मार्केट इस तरीके से जब ऊपर जा रही होती है तो इसको हम लोग डिसेंट व्यूअर्स मार्क करते हैं, और ये वाला जो एरिया होता है इसको स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क करते हैं। और बाज औकात जो है मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर इस तरीके से नीचे आ रही होती है ऐसे। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट आती है इसको टच किए बगैर ऊपर चली जाती है, तो मार्केट जो है वो लोगों को बाय में ट्रैप करती है। यहाँ पर मार्केट जो है तीन लोगों को ट्रैप करती है। वो लोग मार्केट जिन लोगों को ट्रैप करती है वो हम पढ़ लेते हैं। जो इन लोगों को SMC कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, वो लोग ऑर्डर ब्लॉक को मार करते हैं और मार्केट उनको ट्रैप करती है। ऐसे लोग जो फोमो में ट्रेड करते हैं और वो जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं कि मार्केट कहीं हमारे जो है ऊपर ना भाग जाए और हमारी ट्रेड जो है वो मिस ना हो जाए। तो दूसरे तीसरे नंबर पर वो लोग जो सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में काम करते हैं, उनको लिक्विडिटी का पता ही नहीं होता और उस तरीके से वो ट्रेड करते हैं, लेकिन वो भी ट्रैप होते हैं इस तरीके से। जो जिन लोगों को ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाए जाते हैं उन लोगों को बहुत से ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर भी वो मार करके बैठे होते हैं, यहाँ पर भी मार करके बैठे होते हैं, यहाँ पर भी। जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है तो वो ट्रेड से निकलते नहीं है। वो लोग ये समझते हैं कि मार्केट जो है इन ऑर्डर ब्लॉक को टच करने गई है, अब मार्केट जो है फिर वो इसके अंदर इंट्री प्लान करते हैं। लेकिन मार्केट जैसे ही को यहाँ बाय में फंसाती है फिर नीचे गिर जाती है, जैसे इन लोगों को ट्रैप करते हैं। लेकिन हमें पता होता है, हम लोग ट्रेड नहीं करते। आप लोगों ने जब तक ट्रेड नहीं लेनी जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर एक इंड्यूसमेंट कैंडल ना बना दे, ठीक है।
और जब यहाँ पर इंड्यूसमेंट आ जाती है ना, तो तब कंफर्म हो जाता मार्केट जो है वो अब ऊपर ही जाएगी, क्योंकि मार्केट ने लोगों को इंड्यूस कर दिया। ज्यादातर मार्केट जो है रिटेलर्स को इस ट्रैप में फंसाती है। तो आप लोगों ने इस ट्रैप से हमेशा बचना है। जब आपने मार्केट में किसी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को मार करते तो मार्केट उसके नीचे बहुत बड़ी विक बना दे। जैसे कि हमने लिक्विडिटी स्वीप के बारे में पढ़ा, बॉडी क्लोज ना करे इस एरिया पर विक लगा दे, तो इसका मतलब है मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। मार्केट उसमें भी लोगों को बाय में ट्रैप करती है और कैसल हंट करती है। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, एसबीसी, लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप हंटिंग, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो इस तरीके से लोगों को मार्केट जो है ट्रैप करके स्टॉप हंट करती है। इसकी कुछ एग्जांपल जो है हम मार्केट में भी देख सकते हैं। सबसे पहले इंड्यूसमेंट के देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा ये तकरीबन इक्वल हाइस थे, रिसेंट व्यूज था। सेल साइड रिसेंट व्यूज, उसके बाद जो है ये वाला स्ट्रॉन्ग, ये वाला। इस जगह पर भी था, तकरीबन इक्वल हाइज ही थे, लेकिन अगेन फिर मार्केट ने इस जगह पर भी बनाया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई, लोगों को इंड्यूस किया, तो मार्केट जो है वो नीचे क्रैश हो गया, आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से लिक्विडिटी स्वीप की भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने इक्वल हाइस पर इंड्यूसमेंट बनाई, लेकिन फिर भी मार्केट जो है नीचे गिर गई। इस तरीके से आप लोगों ने इस ट्रैप से बचना है। इसी तरीके से लिक्विडिटी स्वीप की भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, ये लिक्विडिटी एरिया था, तकरीबन इक्वल लॉस थे। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया भी था, और फिर ये वाला एरिया भी था, और तकरीबन यहाँ तक मार्केट ने जो है लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने जैसे लिक्विडिटी को स्वीप किया, लोगों को बाय में ट्रैप किया, लोग बाय में गए, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे क्रैश हो गई। तो लिक्विडिटी स्वीप वाला जो कंसेप्ट है वो ज्यादा काम नहीं करता। तो इस तरीके से जब मार्केट एक इंड्यूसमेंट बना देती है ना, तो फिर मार्केट बहुत प्यारी ट्रेड। इस तरीके से आप लोगों ने इस ट्रैप से बचना। यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट आ गई, तकरीबन मार्केट ने बना दी, अब जो है मार्केट ऊपर ही जाएगी। यहाँ पर भी मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट बनाई इस एरिया पर, फिर देखिए मार्केट कैसे नीचे क्रैश हो गई। कम से कम मार्केट ने हमें इंड्यूसमेंट के बाद $103 की मांगी। तो इस लिक्विडिटी एरिया के ऊपर मार्केट ने तकरीबन लिक्विडिटी स्वीप की, इधर देख सकते हैं आप। ऐसे फिर मार्केट ने लोगों को बाय में ट्रैप किया। जैसे ही वो लोग बाय में ट्रैप हुए, तो मार्केट जो है फिर नीचे क्रैश हुई। आ- आपने जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप पर लोगों ने ट्रेड ली होगी, तो मार्केट ऊपर गई है, लेकिन तकरीबन $13, अगर यहाँ तक करे तो तकरीबन $23। लेकिन फिर मार्केट जो है वो नीचे क्रैश होगी। अगर इंड्यूसमेंट के बाद आप ट्रेड लेते हैं, तो इधर देखें, यहाँ पर इंड्यूसमेंट आई आने के बाद देखें मार्केट जो है नीचे कितनी क्रैश होगी। तकरीबन मार्केट $130 के मॉल में टली है। तो आप लोग इस ट्रैप से इस तरीके से बच सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।
آپ نے ٹریڈنگ سیکھنی ہے؟ جی ہاں، لیکن فری میں کون اچھی ٹریڈنگ سکھاتا ہے؟ آپ سعدیہ فوریکس اکیڈمی وزٹ کریں، وہاں فری میں بہترین ٹریڈنگ سکھائی جاتی ہے۔ دیر نہ کریں، آج ہی وزٹ کریں، میں نے بھی یہیں سے سیکھا ہے۔ آپ نے ٹریڈنگ سیکھنی ہے؟ جی ہاں، لیکن فری میں کون اچھی ٹریڈنگ سکھاتا ہے؟ آپ سعدیہ فوریکس اکیڈمی وزٹ کریں، وہاں فری میں بہترین ٹریڈنگ سکھائی جاتی ہے۔ دیر نہ کریں، آج ہی وزٹ کریں، میں نے بھی یہیں سے سیکھا ہے۔ اگر آپ ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی سعدیہ فوریکس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔